Hello and welcome. Special man, special interview 5 for 64, 1986, and multiple times for India in England, star of that 1986 series, subsequently chairman of selectors, one of India's best, Chetan Sharma, joining me for this special interview. With me, my friend Rohit Juglan, my colleague. Chetan Paji, first things first. Lords, we are sitting at Lords. मैं आपको घुमा के पिच भी दिखा सकता था. Fond memories, 1986, take me back. No, definitely, yes, Burya. कितना बढ़िया था because as a fast bowler you just wait for 4 years to be on a England tour. उससे बढ़िया चीज नहीं हो सकती मतलब it was like a blessing for any fast bowler to be on a England tour, especially on the wickets like that. Wickets कैसा भी हो but the conditions are such. You know, end of the day, अगर आप अच्छी जगह पर गेंदबाजी करोगे on the right spot, right areas, you will definitely succeed. And like I was a lucky one because we started with a lot of county games and I was bowling very well in the county games. And I had a chance to bowl at number three. Kaji wanted me to bowl at number three. And first game was at Lords. And that was a like Makkah of a the word cricket, Makkah of cricket. And हमने तो कभी लॉर्ड्स देखा नहीं था जब लॉर्ड्स के अंदर हम घुसे इट वाज लाइक समथिंग different for us. The dressing room and the practice behind the screen. There's so many things actually happened on that tour, especially जब हम इंग्लैंड के दौरे पे शुरू किया. Raj Singh, Raj Bhai was our manager, and we had actual very good good time actually. और वो जब ड्रेसिंग रूम के अंदर मैं बोरिया घुसा ना तो पहली चीज मैंने वहां पर देखी द बोर्ड. तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन टू मनिंदर सिंह वाज यार हमारा नाम भी होगा इस बोर्ड के ऊपर कभी. And we were like Beautiful. 21 years old और 20-21 साल की उम्र में what do you want is first is to play a lot and number two जब हम ग्राउंड के अंदर घुसे with that slope and every fast bowler wants to bowl कि यार down the hill bowling करना कितना मजा आएगा. You go with the speed, I think so. Those were the things and then we started that game. शुरू में हम बॉलिंग किया डाउन द हिल. आई वाज बॉलिंग एंड थोड़ा मार पड़ रहा था. आई थॉट बॉल ही नहीं मूव कर रहा, पता नहीं क्या हो रहा है, बॉल नहीं मूव कर रहा. इंसिडेंटली माय कोच श्री देश प्रेम आजाद जी वाज आल्सो ऑन दैट टूर एंड ही वाज सिटिंग इन द स्टैंड. तो मैं बॉल करने के बाद pavilion and I was bowling. I went on the third man or fine leg. He called me. He said, "Bowl from the other end. Down the hill, तेरा रन अप वैसे ही इतना तेज है और यू आर रनिंग वेरी फास्ट और जो इस लाइन पे जिस लेंथ पे यू वांट टू बोल वो बॉल तेरा जा नहीं रहा. बोल उधर से दूसरे छोर से बॉलिंग करो एंड आस्क कपिल टू मेक यू बोल फ्रॉम द अदर एंड. एंड आई थिंक सो दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट फॉर मी बोरिया. कहते हैं ना कोचेस, दैट इज व्हाई वी रिस्पेक्ट कोचेस. दैट्स व्हाई वी नो they have better knowledge than us. So as soon as I Beautiful started story. bowling from, and as soon as I Beautiful story. started bowling up the hill, सबसे पहले I got I think so Mike Getting, then Anil Lamb, Gar. Back to back, I got 3 wickets in a span of 3 overs. And then फिर दिमाग में शुरू हो गया चलना शुरू हो गया कि भाई 5 विकेट लिए जा सकते हैं. Then I still remember with the second new ball I got Gooch out. He was batting on 100 and then who was the fifth one? LBW. I got fifth wicket, and that was the moment, you know. जो हमने तो सिर्फ लॉर्ड्स का नाम सुना था, देखा पहली बार खेले हैं, पहली बार 5 विकेट and a victory. That was a most important thing for us. Was 1971 के बाद हमारे दिमाग में ये चीज घुसाई जा रही थी, दिस इज द बेस्ट चांस वी कैन विन इन 1986 बिकॉज जो टीम थी, सनी भाई वाज लाइक ए मेंटर टू अस. मैं और मनिंदर लाइक वी यूज्ड टू सिट विद सनी भाई ऑल द टाइम. एंड मुझे अभी एक उससे पहले मैं पीछे लेके चलता हूँ कि बहुत मीडिया बात कर रही थी सनी भाई के कुछ रन नहीं हो रहे थे. समर सेट में मैं सनी भाई और मन्नी बाहर खड़े थे. तो इसे यंगस्टर्स यू वांट मी टू you want come and watch my batting today. बड़ा मीडिया ने बहुत मीडिया पापा कर रही थी. He said, "Come, I show you my batting today," and he got 100 against Somerset. वाह, मतलब he is the champion. मैंने तो उनके साथ जितना टाइम निकाला है और
सुन सुन के निकाला है कि आज वो उनका मन है रन बनाने का, तो वो रन बनाते थे। तो वो समरसेट में मुझे याद आता है। उसके बाद सीधा हम लॉर्ड्स आए, एंड लॉर्ड्स में जो विक्ट्री हमारी हुई, एंड दैट वाज समथिंग। और बेस्ट फैंटास्टिक। पार्ट क्या, दैट वाज बेस्ट पार्ट वाज इन स्विंग अच्छा चल रहा था एंड गेटिंग आउट हो रहा था। तो मैंने कल यही बोला आकाशदीप के साथ। मेरी बात नहीं हुई, बट मेरी वो चैट हो रही थी। आई कांग्रेचुलेट हिम, ही थैंक मी। तो मैंने उसको बोला गो एंड गेट 25 प्लस विकेट्स। और मैं एक हंस रहा था अपने स्टूडियो शो के अंदर, बुरिया। मेरा हैट्रिक का एक रिकॉर्ड था ओडीआईज में। ही वो न्यूजीलैंड वो न्यूजीलैंड 1987, that सेवन was equal सेवन 1987, and that was equaled by Mohammad Shami, and he's from Bengal. And कल किसने विकेट लिया? 10 विकेट लिया है एजबेस्टन में, and Kashdeep is from Bengal, and I'm and from again I am Bengal. also from Bengal. That is why you love me so much. Simple. And, But Rohit, and, पूछो। and चेतन सर, पॉल डॉन्टन थे जिनका आपने लास्ट में विकेट लिया था, जो फाइफर लिया था आपने, उनको आपने लास्ट में आउट किया था। बट मैं ये जानना चाह रहा था, जो आपने स्लोप का बात किया, जब आप आकाशदीप को बोलते हो कि उनको यहाँ पर गेंदबाजी करनी है, आप एज अ सीनियर बॉलर या एज अ मेंटोर, एज समवन जिसने यहाँ पे सक्सेस देखी हुई है, आप क्या उनको आपका क्या मंत्र होगा उनको, एक तरीके से आप क्या उनके साथ शेयर करना चाहोगे? क्योंकि जैसा आपने कहा कि स्लोप थोड़ा सा कंफ्यूज करता है यहाँ पे, वेदर यू वांट टू बॉल फ्रॉम द पवेलियन एंड या फिर आप नर्सरी एंड से गेंदबाजी करना चाहते हो, क्या आप उनको जो है वो मशवरा दोगे? if he has a chance to like start with the up the hill, and once you settle down, I think so, then कोई फर्क नहीं पड़ता। Once I got settled down, I got couple of wickets, then मैंने इधर से पवेलियन एंड से आके भी विकेट्स निकाली है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनिशियल क्या होता है कि जब आपको स्लोप मिलता है, लाइक आकाश ही मेरी तरह बहुत तेज भागता है। हिज रन अप, उसका जो रन अप है, उसका जो फॉलो थ्रू, एंड देन हिज एयर में जब तेज है, तो इट रिमाइंड्स मी, मुझे आकाश की बॉलिंग देख के अपना याद आता है कि वो ऑफ द विकेट बहुत तेज जाता है, एंड जेट्स अराउंड, उसका दोनों तरफ बॉल ऑफ द विकेट जा रहा था, जैसा मैंने पिछले टेस्ट मैच में देखा, बिकॉज आई वाज इन द स्टूडियोज। तो ये बहुत कम फास्ट बॉलर्स का जाता है कि आप बैट्समैन आउटस्विंग खेलने गया और पढ़ने के बाद अंदर आ गया, और जो स्मिथ को अंदर आया, मतलब उसको समझ ही नहीं आया कि आके लगा। तो अगर वो आ रहा है आपका और वो लॉर्ड्स में आएगा, if you are comfortable, once you are comfortable with the slope, because आपको अपने आप को स्लो नहीं करना। स्लोप पे क्या होता है कि बहुत गाइडेंस होती है, कहते हैं मशवरा बहुत फ्री का होता है, बहुत लोग देते हैं मशवरा, तो वो फ्री का मशवरा नहीं लेना बिल्कुल भी। अपने आप को असेस करना है। अगर लग रहा है कि मैं बहुत तेज भाग रहा हूँ डाउन द हिल, ट्राई फ्रॉम द अदर एंड, वंस यू सेटल डाउन, देन ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक जाएगा। देन आपका दोनों तरफ से बॉल जेट करेगा, अंदर बहुत अच्छा जाता है। इधर से जब आप पवेलियन से बॉल डालते हो, बहुत अच्छा अंदर जाता है, डिपेंडिंग ऑन द विंड का क्या कंडीशन रहेगा उस समय। और जितनी मुझे अंदर की विकेट्स मुझे मिली है, वो मैंने पवेलियन शोर से ली थी। मतलब गेटिंग को आउट किया, इवन जो मेरा बॉल अंदर गया, गूच को भी आउट किया था। तो वो आपको असेस करना पड़ेगा, एंड ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू असेस थिंग्स, क्योंकि हमारे समय में बहुत डिफरेंट चीजें थी। Once in 4 years we used to get a tour outside. अब ये बच्चे तो हर दूसरे दिन बाहर टूर पे रहते हैं, तो they can assess better than us actually. अजी, आपने एक ट्वीट भी किया था और आपने पोस्ट भी किया था सोशल मीडिया में कि जब आकाशदीप को चुना गया, आप उनसे बात कर रहे थे। he was attending to his sister कैंसर का ट्रीटमेंट के लिए। he was not even celebrating his India call up. आप बहुत इमोशनल एक पोस्ट किया था आपने। आप थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे कि आपके साथ क्या चर्चा हो रहा था, आपने उसको कैसे इंस्पायर किया जब when selection happened and he was passing through these tough times? हाँ, नहीं, मैं तो सिर्फ क्रिकेट के ऊपर मैं तो सिर्फ इनकरेज कर रहा था, बिकॉज आई वाज जस्ट इनकरेजिंग हिम, बिकॉज आई नो ही केम इन द इंडिया ए साइड। मुकेश एंड आकाशदीप, मैं पहले दिन से सबको बोल रहा था, ऑल द सेलेक्टर्स आई वाज सेइंग कि दीस आर द टू गाइज who will be like a future of Indian cricket आते समय में, but if they keep working hard। तो मैं हर समय, मुझे मालूम था he was going through the rough times। तो उस समय आप क्या करते हो? आप यही करते हो कि as a senior cricketer you just tell them कि ठीक है, family thing is very important, yes, without family we are nowhere।
बट उसके साथ साथ हम क्रिकेट में अपने आप को कैसे ला सकते हैं। क्रिकेट देखिए, आप अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, यू डू वेल फॉर कंट्री, द एंटायर फैमिली इज हैप्पी। तो मैं सिर्फ यही बात कर रहा था कि जस्ट यू आर द बेस्ट, बिलीव इन योर सेल्फ। तुम हर चीज अच्छी कर सकते हो, घर को भी अच्छा देख सकते हो, सिस्टर को भी अच्छा देख सकते हो, एंड यू क्रिकेट भी अच्छा खेल सकते हो। दैट दोज आर द थिंग्स, यू नो। बोलिए, आप सिर्फ इनकरेज ही कर सकते हो। देखो, द गाय हु इज गोइंग थ्रू द रफ पीरियड, हम लोग तो सिर्फ कंधे पे हाथ रखकर शाबाशी दे सकते हैं, नथिंग मोर। बिकॉज तभी मैंने कहा ना कि चीजें कहना बड़ा आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। एंड दिस गाय did it very well. I was very sad actually. मैं उस समय ऑन एयर था जब शिराज से कैच छूटा उसका। तो मेरे साथ द को कमेंटेटर वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी एंड आई जस्ट से आई सेड, मुझे लग रहा है इसकी किस्मत में 10 विकेट नहीं लग रहा है यार। क्या बेचारे की किस्मत में 10 विकेट नहीं लग रहा। इतना नजदीक जसप्रीत बुमराह भी पहुंचा 9 विकेट्स के साथ एडजस्टिंग में। एंड आई थिंक सो हु वाज द सेकंड वन हु केम इंग्लैंड के अंदर एडजस्टन में। 2 प्लेयर्स हैं जो 9 विकेट्स पहुंचे, पर 10 नहीं हुआ। तो ऐसा यार, ये 10 विकेट होना ना जिंदगी में एक, आपके पता क्या होता है, आप जब इंडियन टीम में आते हो, आपकी ये दुआ करते हो कि मुझे 5 विकेट मिलनी चाहिए। देन 5 के बाद ना फिर आपको बहुत जल्दी 10 मिल जानी चाहिए। बिकॉज ये एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बॉलर के लिए। एक 10 विकेट है, एक आपकी जिंदगी में तगमा रहता है, बहुत बड़ी चीज होती है। 10 विकेट्स इन ए गेम। और जो कल चल रहा था जब, तो ऐसा आई वाज प्रेइंग, ऐसा यार इसको मिलना चाहिए बेचारे को यार, क्योंकि 9 विकेट, पता नहीं कब दोबारा जिंदगी में आप 9 विकेट में पहुंचोगे। मतलब आपको उस समय लगता है कि नहीं बहुत आसान है पहुंचना, लेकिन बहुत मुश्किल है। तो गॉन थ्रू में एक बार पहुंचा, दूसरी बार दोबारा 9 विकेट पे पहुंचे नहीं आप। तो जब पहुंच गए हो तो उसको कंप्लीट कर देना चाहिए। एंड वेरी हैप्पी he completed the 10 wickets. चेतन सर, एक लड़का जो आपके उस समय पे जब आप चेयरमैन सेलेक्टर थे, कहीं ना कहीं उसको लेकर के एक लीडरशिप टॉक शुरू हुई, आप लोगों ने आगे बढ़ाना शुरू किया, नेम इज शुभमन गिल। उनको आप किस तरीके से देखते हो? वहां से ऐसा तो नहीं है कि अचानक से रातों रात नई मैनेजमेंट आई और उन्होंने फैसला ले लिया कि भाई ये कप्तान होगा। आप थोड़ा सा प्रोसेस बता सकते हैं, आप लोग किस तरीके से देखते थे शुभमन को? क्योंकि वही दौर है जब शुभमन तीनों फॉर्मेट्स में आना शुरू कर रहा था और हम उनको लगातार ग्रो करते हुए देख रहे थे। आपको उस समय पर यकीन था कि ये आगे चलकर इंडिया को लीड कर सकता है इन ऑल फॉर्मेट्स? देखिए, उस समय ही वाज लाइक, जब हम लोग हमारी सिलेक्शन कमेटी थी, तो ही वाज देयर इन 2 फॉर्मेट्स। देन स्लोली वी got him into the 3rd format also, where he came and got 100. एंड देखो क्या था उस समय, तो इतना चीजें नहीं थी कि कहाँ जाएंगी। तो ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन कमेटी सोचती है कि फ्यूचर क्या होगा इंडिया ए में। आप देखते हो, आप वाइस कैप्टन की बात करते हो, बट द कामनेस ऑफ द किड इज वेरी नाइस, मुझे इतना अच्छा लगा। मैं देख रहा था, पूरे 2 मैचेस देख रहा था, एक आप हारे हो, एक आप जीते हो। मतलब बहुत लोग हैं कि हारते हो जब आप हो ना, तो आप कहीं ना कहीं गुम जाते हो, थोड़ा वेवर्ड हो जाते हो। बट मुझे उसके हाव भाव से, उसकी शक्ल से, उसकी बातों से, उसके इनकरेजमेंट से, जो प्लेयर से बात करनी है, इट रिमाइंड्स मी ऑफ धोनी। द कामनेस रिमाइंड्स मी ऑफ धोनी। और अगर कैप्टन इतना काम है और अपना पॉइंट टू पॉइंट जाकर, बिकॉज मैं हर कैप्टन को कैसे असेस करता हूँ, मैं अपने आप को एज ए बॉलर रखता हूँ वहाँ पर कि मेरे से कैप्टन क्या बात कर रहा है, व्हाट ही इज टॉकिंग टू सिराज, what he is talking to other bowlers, कैसी वो बात कर रहा है, what sort of field he is giving, bowler क्या मांग रहा है। देखिए आजकल तो क्लीन फीड में आपको सब कुछ दिखता है। मतलब वाइड भी पब्लिक को नहीं दिख रहा सब कुछ, वहां पर मुझे तो दिख रहा है एज ए कमेंटेटर। तो मुझे तो क्लीन फीड पे हर चीज नजर आ रही है कि ब्रेक के अंदर क्या डिस्कशन हो रहा है, क्या नहीं डिस्कशन हो रहा। आई थिंक सो ही गॉट अ ब्रिलियंट एटीट्यूड। मैंने बहुत कैप्टन्स देखे हैं। मैंने अपने टाइम में मैं 7 कैप्टन्स के अंडर खेला हूँ। उसके बाद बहुत सारे, एंड बिकॉज आई एम अटैच्ड टू क्रिकेट फॉर लॉन्ग टाइम एज ए कमेंटेटर और एज ए एक्सपर्ट, बट दिस गाय गॉट अ ब्रिलियंट एटीट्यूड। मतलब वो देखिए क्या होता है ना, कामनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना जैसे मैं हर समय कपिल पाजी के बारे में बोलता था ना कि ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ता उनको कुछ भी, मतलब कोई ज्यादा बोलते ही नहीं आपको। वो उनका ये सोच होती थी, अरे तू बॉलर है, कर लेना अपने आप, तो तुझे ही करना है, मैं तुझे बोलता रहूंगा, करना तुझे अपनी है। दैट इज अ थिंग।
जो मुझे अभी तक देखने में नजर आया 2 टेस्ट मैचेस में, he comes to you, he speaks to you what you wanting, he gives you. That is very important. मतलब और ठंडा आदमी है, ठंडा, मतलब एक ना, एंड देन उसकी बैटिंग में भी वो चीज नजर आ रही है मुझे। मैंने शुभमन को बहुत समय खेलते देखा है, मतलब इतना क्लोजली मैंने उसको देखा, मतलब जो कामनेस मुझे अभी नजर आ रही है ना, वो कामनेस माइट भी पहले नजर नहीं आई। मतलब he was brilliant। देखिए इतने साल से खेल रहा है, he become the captain of India, obviously he is the best। तो मतलब जो कामनेस की मैं बात कर रहा हूँ टेस्ट क्रिकेट में आपको चाहिए होती है ना, बहुत अच्छा लग रहा देख के। मतलब मैं कल बैठा, परसों बैठा, ये जब सॉरी व्हेन ही गॉट 200 ना, तो मैं ये बैठ के बात कर रहा था सभी से, ऑल कमेंटेटर्स वर सिटिंग, ऐसे इसको कहाँ गेंद डालोगे यार, कहाँ गेंद डालोगे? पहले तो इसको ऑफ स्टंप पे डाल के थोड़ा सा हम लोग करते थे, बट ही इज कवरिंग सो मच, अब वो तो छेड़ ही नहीं रहा, वो तो अपना फोर्थ बॉल को, फोर्थ और फिफ्थ बॉल को नहीं छेड़ रहा, आप कहाँ डालोगे? और पहले ये एक चीज होती थी कि अंदर मारो शुभमन को तो थोड़ा ट्रबल होगा, कोई ट्रबल नहीं हो रहा, अंदर सबने मारा। मैंने देखा इंग्लैंड के सारे बॉलर्स वर ट्राइंग हिम बॉलिंग, ट्राई टू बॉल हिम इन स्विंगर्स, बिकॉज उन्होंने भी रीड किया होगा ना, जो पीछे पुराने स्टोरीज चलती आई हैं कि अंदर डालोगे थोड़ा डिफिकल्टी होगी, बट दिस गाय रियली इम्प्रूव, कामनेस बहुत अच्छी। देखिए क्रिकेट के अंदर स्किल्स सबके पास है, जो इस टॉप 15 में पहुंचा है, हिंदुस्तान के टॉप 15 में पहुंचने लाखों प्लेयर्स के बीच में से, ऑब्वियसली यू हैव समथिंग व्हिच द अदर पीपल डज नॉट हैव, बट अब उसको आप कैसे उस स्किल्स को आगे लेकर उसको मल्टीप्लाई करोगे चीजों को, आई थिंक सो शुभमन हैज डन इट वेरी वेल, एंड आई एम रियली प्राउड कि मतलब शुभमन इतना अपने आप को, मतलब जो उसने अभी 2 टेस्ट मैचेस में दिखाया है ना कि व्हाट आई एम, मतलब हैट्स ऑफ टू हिम। आई एम रियली हैप्पी कि the things are in good hands, the Indian cricket is in good hands, I'm very happy for him। आज लास्ट सवाल पूछ लेता हूँ, बिकॉज आपने भी कहा था ज्यादा टाइम नहीं है, बट रोहित और मैंने तो आपसे करीब 20-25 मिनट बात भी कर लिया। क्या लगता है सीरीज जीत सकते हैं यहाँ से? बुमराह वापस आएगा लॉर्ड्स में, बट इंग्लैंड के पास भी आर्चर और एटकिंसन आएगा, पिच हमारे सामने है, हम लोग लॉर्ड्स में ही बैठे हुए हैं, अभी थोड़ा सा ग्रीन दिख रहा है, बट अभी भी मैच डे -2, सो देखना पड़ेगा एग्जैक्टली क्या, और हैवी रोलर चल रहा है। मैं अगर घुमाकर आपको दिखा सकता था तो आप ज्यादा कह सकते थे, बट क्या लग रहा है यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग सीरीज? देखो हैवी रोलर चल रहा है तो इसका मतलब घास ज्यादा छोड़ेंगे नहीं वो लोग, एंड देखो बुमराह कम्स इन, तो आई वांट टू सी दैट, हम क्रिकेट में उसको कहते हैं वो युद्ध मैं देखना चाहूंगा, जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप एंड सिराज, एंड उधर आर्चर हो कुछ भी हो, और मुझे ये है कि बुमराह आया ना, बुमराह आया, वी कैन बीट एनी साइड, आई थिंक सो वी हैव। मैंने कल आकाश को मैसेज में भी लिखा, विन इट फॉर अस, विन इट फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है एक सीरीज इंग्लैंड में जीतनी। मतलब हम 1986 में जीते थे, आज भी आपको याद है, आप ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतोगे दुनिया को 25 साल याद रहेगी। हम 86 में जीते थे, देखो कितने साल हो गए, 35, 36, 37 साल हो गए, आज भी सबको याद है कि वो सीरीज हम जीते थे। ये सीरीज जीतना चाहिए, एंड वी आर केपेबल। हमारी देखो बैटिंग तो प्लस पॉइंट है, हमारी बैटिंग बहुत अच्छी है, it's how and who is going to take those 20 wickets, that is very important। 20 विकेट हमारे पास लेने वाला बॉलर्स चाहिए, और बुमराह आ जाता है तो वैसे ही हमारा जिगरा 10 गुना बड़ा हो जाता है। देखिए बुमराह का टीम में खड़े होना ग्राउंड पे, ही इज मोर देन अनफ फॉर एवरीबॉडी, और वो आएगा, वो विकेट निकालेगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। एंड विद आकाशदीप 10 विकेट्स बिहाइंड हिम, 7 विकेट्स बिहाइंड सिराज, बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात है। आई थिंक सो 2 फास्ट बॉलर्स गॉट विकेट्स इन द लास्ट गेम, वो उनको बहुत इंकरेजमेंट, वो उनका टेल अप रखेगी, एंड देन बुमराह कम्स इन, लेट्स विन द लॉर्ड्स ही तो जीतना है। एजबेस्टन जीत गए, जो इतने साल नहीं जीते, 8 साल, 8 बार हम खेले, एक ड्रॉ हुआ था 1986 में, और 7 हारे हम, वो जीत गए हैं, तो फिर लॉर्ड्स तो जीतना ही जीतना चाहिए। 86 में हमने जीता था, तो अब 25 में भी जीतेंगे, 100% जीतेंगे। हाँ, ये क्या होता है ना रोहित, तो ये चीजें क्या है कि हम लोग इंडिया में बैठे हैं, आप लोग वहां बैठे हैं, आपको माइट भी इतना ज्यादा वो नहीं पता लग रहा या फर्क पड़ रहा, इन द सेंस बिकॉज यू आर देयर, यू आर क्लोज टू द, कहते हैं ना जो लोग क्लोज होते हैं ना वो डाइजेस्ट कर लेते हैं चीजों को। हम लोग स्टूडियोज में बैठे हैं, इंडिया में बैठे हैं,
और पूरा हिंदुस्तान लोगों को मिलते हैं. फॉर अस विनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब जीतेंगे, देखो क्रिकेट जीतेगी तो हम सब जीत रहे हैं. ये क्रिकेट चल रही है, हम लोग से सब चल रहे हैं. इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द क्रिकेट वी ऑल एग्जिस्ट. एंड हम जीतते रहेंगे तो हमारा झंडा बुलंद रहेगा. तो मेरे माई विशेज और ऑलवेज वांटेड इंडिया टू डू वेल एंड परफॉर्म, एंड स्पेशली नाउ इन लॉर्ड्स. तो माई विशेज, मेरा जो कहते हैं 100% नहीं है, आज 110% विशेज है उनके लिए. थैंक यू सो मच सर. इतने आपने ब्रिलियंट इनसाइट्स दिए, स्पेशली अबाउट द स्लोप एंड आकाशदीप की स्टोरी. थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड एंड बोरियादास साइड. थैंक यू सो मच सर. Thank you. Thank you. Thanks, Shetabaji. Thank you. Thank you. Thanks.